brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है सिद्धारमैया। लेकिन सिद्धारमैया क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगले 2.5 साल भी विराजमान रहेंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि लगातार सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार कैंप के जो नेता हैं वो दबाव बना रहे हैं हाईकमान पर। डीके शिवकुमार कैंप के कई विधायक दिल्ली पहुंचे, आलाकमान से मिलने के लिए वक्त मांगा और लगातार आलाकमान पर दबाव बनाया जा रहा है कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी अब सौंप दी जाए। इस बीच आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे का एक बड़ा बयान सामने आया है। उस बयान में प्रियांक खड़गे ने कई बातें कही हैं। आपको बता दें कि प्रियांक खड़गे की हाल ही में राहुल गांधी से मुलाकात हुई और राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान प्रियांक खड़गे ने क्या कुछ बात की वो भी उन्होंने बताया। उनसे पत्रकार ने पूछा भी कि जो इस वक्त कर्नाटका में चल रहा है, क्या आपने उस बात की जानकारी दी राहुल गांधी को, उनका क्या कुछ कहना है, उस पर भी प्रियांक खड़गे का स्टेटमेंट आया है। लेकिन इसके साथ ही प्रियांक खड़गे ने कहा है कि फिलहाल सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है। सुनिए क्या कुछ कहा है प्रियांक खड़गे ने। So when AICC president himself is saying, then where is the fire then? So what exactly is happening, sir? You yesterday met the Rahul Gandhi, as per my sources. See, there were discussions as well. See, Mr. Gandhi was supposed to come for the Bangalore Tech Summit. He was supposed to launch the artificial intelligence personal computer. So I had sought time from him. So we went there, showed him the AIPC, and we have come. What is it? Shouldn't I show my high command the exceptional work the department is doing? Was there no discussion about the present state politics, sir? No, you seem to know everything. No, the way you're asking me. Absolutely. I'm telling you, we had gone for the AIPC and we have shown him the AIPC. Everything is okay. Everybody is abiding by whatever decisions High Command take, whether it is for now or whether it's in the future. So there is no clearance whether Siddaramaiah will continue. Because when all of us are speaking in the same voice, where is their ambiguity? See, BJP is finding no issues. They're falling flat on their faces whenever they're raising any issues. The problem is with them, not with us. See, very clearly, the CM, DCM, and every member of the Congress party or my cabinet colleagues have been very, very clear saying that whatever High Command decides. So hasn't the Chief Minister said the same thing? Hasn't the PCC President said the same thing? When the top leadership is speaking in the same voice, when they're speaking in the same tone and tenor, where is there a difference? तो कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे का बयान अभी आपने सुना। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जो कर्नाटक में टेक समिट होने वाला है उसमें आने वाले हैं और उसी को लेकर उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भी बयान दिया है अभी तक जो भी परिस्थितियां चल रही हैं उनको लेकर, तो उससे अपने आप काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, सब कुछ ठीक है और हाई कमान जो तय करेगा वो इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रियांक खड़गे ने डीके शिवकुमार को भी नसीहत दी है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। But whatever you have to say it at the right forum. There's no point in coming to the media and talking about it. You have access to the High Command, you have access to the AICC President, you have access to the PCC President, you have access to the Chief Minister, you have access to Randeep Singh Surjewala. So whatever has to be said, you have to say it there. It doesn't matter what is said in front of the media. तो प्रियांक खड़गे का साफ कहना है कि आपकी पहुंच हर किसी तक है, आपकी पहुंच AICC चीफ जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उन तक है, राहुल गांधी तक है, मुख्यमंत्री तक है, तो सही प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहनी चाहिए, मीडिया में ये बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके साथ जिस तरीके से विरोधी बीजेपी की ओर से हमले हो रहे हैं और बीजेपी नेताओं की तरफ से जो बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में इस वक्त भारी भूचाल आया हुआ है, कांग्रेस के विधायक खुद कांग्रेस के विधायकों को खरीद रहे हैं, इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर भी प्रियांक खड़गे ने बीजेपी को दो टूक जवाब दिया है। See, that might be their way of functioning. Operation Lotus is their trademark. So till now, these people have not been able to give one chief minister for 5 years. First time they came to power, they gave us 3 chief ministers. Second time they came to power, they gave us 2 chief ministers. Buying, selling, renting, hiring,
is their way of functioning, not ours. फिलहाल कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार दोनों कैंप के जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि उनके नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए। अंदर खाने ये तय हुआ, जिस तरह की चर्चा सामने आती रही है वक्त वक्त पर कि 2.5 साल का प्रॉमिस किया गया था कांग्रेस हाईकमान की ओर से, जब मुख्यमंत्री का चयन किया जा रहा था कर्नाटक की सरकार के लिए, कि पहले 2.5 साल सिद्धरामैया मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 2.5 साल जो हैं वो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी। अब सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए 2.5 साल का वक्त हो चुका है इस सरकार में। अब डीके शिव कुमार कैंप ये चाहता है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाए। अब देखना होगा, जैसा कि तमाम नेताओं का कहना है कि हाईकमान तय करेगा, तो क्या हाईकमान तय करता है और कब तक तय करता है। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक। देश में जातीय जनगणना, मतलब जनगणना और उसके साथ जो जातीय जनगणना होगी उसके टर्म ऑफ रेफरेंस और उसके एसओपीज जो है वो डिफाइन कर दिए गए हैं। तो एक तो जनगणना और दूसरी जातीय जनगणना, इस पर आपकी कोई ओपिनियन है? देखिए, इस मामले में मैं थोड़ा सा एक और डिफरेंट व्यू रखती हूँ कि जाति पता सरकार को तो होनी चाहिए, क्योंकि किस जाति के कितने लोग हैं और उनका लेवल क्या है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या एसोसिएटेड है, उस समाज के किस तबके में है, क्या उनके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उनको किस तरह का सहयोग चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन हम एज अ होल पूरे देश को जाति और धर्म में इतने बांट चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक बार जब पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो उनको अपीज करने के लिए जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स होता है वो और बृहद लेवल पर शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि ऐसा करने के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। तो फिर अगर सरकार को ही सिर्फ पता होगा तो मतलब बीजेपी को पता होगा, अगर इस समय की बातचीत हो तो फिर कांग्रेस उसका फ़ायदा नहीं ले पाएगी, समाजवादी पार्टी आरजेडी को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये तो फिर जातियों की जो जनगणना ये बीजेपी के इलेक्शन मैथमेटिक्स में उनके काम आएगी फिर। नहीं, यही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक पार्टी को पता चलेगी तो सारी पार्टियों को पता तो चलनी चाहिए। ये तो आप डेमोक्रेसी में रोक ही नहीं सकते हैं कि सिर्फ सरकार को पता हो और बाकी लोगों को पता नहीं हो। लेकिन इसके दोनों चीज़ हो सकते हैं ना, सरकार इसके फ़ायदे भी उठा सकती है और इसका नुकसान भी है कि सरकार अगर अपीसमेंट पॉलिटिक्स खेल जाए और उस जाति के लिए कुछ विशेष ऐसा ले आए कि भाई पूरा वोट बैंक ही उनके तरफ चले जाए, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है बाकी अपोजिशन के लिए भी। लेकिन मेरा यही चीज़ मानना है कि इस जाति जनगणना के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं।